राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारतीय नौसेना पोत वलसुरा को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति रंग से सम्मानित किया। राष्ट्रपति का रंग एक सैन्य इकाई को शांति और युद्ध दोनों में राष्ट्र को दी गई असाधारण सेवा के सम्मान में दिया जाता है। इस अवसर को चिन्हित करने के लिए एक औपचारिक परेड आयोजित की गई और राष्ट्रपति को 150 पुरुष गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। 1942 में स्थापित आईएनएस वलसुरा भारतीय नौसेना का एक प्रमुख प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है। इसे भारतीय नौसेना तटरक्षक बल और मित्र देशों के अधिकारियों और नाविकों को इलेक्ट्रॉनिक्स, हथियार प्रणालियों और सूचना प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। I am pleased to be here with you all today on this momentous occasion to present the President's color to INS Balsura. I congratulate the Indian Navy and in particular the officers and sailors of INS Balsura for achieving this remarkable feat. I also congratulate you for an excellent parade, immaculate turnout and high standard of drill and discipline. The beautiful city of Jamnagar is an important center for industry and economy. The fact that Jamnagar has a station of all three arms of the armed forces, Army, Navy and the Air Force underlines its strategic importance. It was my honor reviewing the entire fleet of the Indian naval ships, submarines, aircrafts lined up in precise symmetry and maneuvering across the Bay of Bengal. The fleet review showcased India's maritime power and reinforces our faith in the capability of Indian Navy to ensure maritime security in the region. As Supreme Commander of the Armed Forces, it was a moment of immense satisfaction and pride for me. Ladies and gentlemen, INS Valsura has rich history of professional excellence and it has discharged its responsibilities with distinction. The unit was commissioned on 15 December 1942 as a torpedo training school during World War II to enhance capability of the Royal Indian Navy. Over the last 79 years, INS Valsura has transformed into a premier technical training institution. It is entrusted with the vital role of skilling the sea warriors to maintain complex weaponry and electrical equipment on board ships and submarines. The Indian Navy is safeguarding our national interest in the maritime domain. The Navy over the years has emerged as a combat-ready, credible and cohesive force and is the preferred security partner in the Indian Ocean region. It is a matter of great pride that the Indian Navy has consistently evolved to safeguard our extensive maritime interests with resolve and tenacity. The Indian Navy is continuously enhancing its strength, keeping in mind the long-term perspective plans and towards meeting the expanding range of missions. The naval ships and maritimes are equipped with state-of-the-art and sophisticated electronics, weapons and sensors which are key enablers and integral to its combat worthiness and other operations. I am confident that INS Balsura will continue to equip the officers and sailors with the requisite skill set to ensure combat worthiness of complex weaponry, electronics and IT equipment
fitted on board ships and submarines. I am told that INS Balsura has been designated as the Indian Navy's pivotal node of training on new emerging technologies like artificial intelligence and big data analytics. INS Balsura has also emerged as the preferred training destination for our friendly navies. I am told that 1,800 trainees from 15 friendly foreign countries have been trained till date from this premier institution. This has also strengthened our bilateral ties with the countries from the Indian Ocean region. Distinguished officers, ladies and gentlemen, we owe a debt to our society and our nation. It is our sacred duty to repay this debt by helping the society in whatever way we can. I am happy to note that INS Balsura has initiated a number of social outreach programs and welfare measures in the Saurashtra region. I once again congratulate the Indian Navy and INS Balsura on this proud occasion and urge all the men and women to continue their service to the nation. आज एमपी में पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंत्रालय में सीएम शिवराज ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 2,40,000 छात्र छात्राओं को पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक की 331 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से सीधे खातों में हस्तांतरित कर शुभकामनाएं दी। सीएम शिवराज ने कहा, मैंने इसीलिए संबल योजना बनाई ताकि हमारे गरीब परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चे भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपना सपना साकार कर सकें। आप सबको पहले होली रंग पंचमी अभी गई है, उसकी शुभकामनाएं। जैसे होली के रंग से सरोबार प्रदेश हो गया, कोविड के कारण 2 साल से मना नहीं पा रहे थे होली, लेकिन इस बार कोविड कंट्रोल में तो मैंने भी कहा कि जम के होली खेलो, और मैंने भी खूब खेली, जनता के बीच खेली। आपके जीवन में खुशियों के रंग भरें, चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहे, आंखों में आशा और विश्वास की चमक रहे, आपका भविष्य बेहतर हो और आप सब मिलकर अपने प्रदेश और अपने देश का भविष्य बेहतर बनाने के लिए काम करें। मेरे बेटा बेटियों, मैं जानता हूं कि हम अधिकांश ऐसे हैं जो या तो किसान परिवारों से संबंधित है। अब किसान की आय भी कोई बहुत बड़ी आय नहीं होती। मैं भी एक किसान के घर में ही पैदा हुआ। बेटा बेटी को पढ़ाना, दूसरी जगह भेज के पढ़ाई का खर्चा उठाना कई बार असंभव सा हो जाता है, लेकिन वो माता पिता जो दिनों रात मेहनत करते हैं, अपने खून और पसीने की कमाई आपकी पढ़ाई में लगाते हैं। मेहनत कश होना गर्व की बात है। जो अपने परिश्रम की खाता है, सचमुच में वो वंदनीय है। लेकिन आप देखो, इसके बाद भी माता पिता की तड़प के कैसे मेरे बेटा बेटी ढंग से पढ़ जाए, उसकी चिंता करते हैं वो। और इन सब बातों को ही देख के मेरे बेटा बेटियों, हमने मुख्यमंत्री बनने के बाद कोशिश की कि मां बाप माता पिता को जो कष्ट होता है बच्चों की पढ़ाई में, उस तकलीफ को मैं बांट सकूं। और इसलिए हमने बचपन से ही अगर देखे तो तय किया कि विशेषकर शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले हमारे बच्चे, उनको किताबें निःशुल्क मिल जाए, उनको यूनिफॉर्म मिल जाए। दूसरे गांव पढ़ने जाने पर साइकिल की व्यवस्था इसलिए की कि बेटियों को लोग भेजते नहीं थे पहले दूसरे गांव में। एक नहीं, अनेकों प्रकार की छात्रवृत्तियां। अब गांव की बेटी योजना बनाई, जिसमें तय किया कि 12वीं में अगर प्रथम श्रेणी में गांव में बेटी पास हो जाए तो 5,000 रुपया गांव की बेटी योजना के अंतर्गत पाए।
लेकिन इस सबसे संतोष मुझे नहीं हुआ। मुझे लगा कि कई परिवार ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन बेटा बेटी पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। इसलिए संभल करके एक योजना बनाई मैं और उसमें तय किया कि हमारे बेटा बेटी जिनमें बुद्धि है, क्षमता है, प्रतिभा है, टैलेंट है, मेहनती है, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, अब अभी हमने एमबीए करने वाले शुभम के पिताजी से बात की। 11,54,500 रुपया फीस। हम माता पिता नहीं भरवा सकते। मेरे मन में तब यह विचार आया कि ऐसी योजना बनाओ कि जिसके कारण जिन बच्चों में टैलेंट है वो पैसे के कारण पढ़ाई से वंचित ना हो पाए। और इसलिए तय किया मेडिकल की पढ़ाई हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो। हमारे कई बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, केवल सरकारी नहीं प्राइवेट में भी पढ़ रहे हैं। उनकी फीस भी 7 लाख 6 लाख रुपया साल है। वो फीस बच्चे नहीं भरवा, उनके माता पिता नहीं भरवा सकते थे। इसलिए हमने तय किया कि ये फीस मम्मी पापा नहीं, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। और इसलिए हमने पैसे का इंतजाम करके बच्चों के खाते में डालने का फैसला। आगे इसको रेगुलर चलाएंगे। आज 2,40,000 बच्चों के खाते में 331 करोड़ रुपया डाले गए और 21-22 में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया नया, उनकी छात्रवृत्ति के लिए MPSEDC के द्वारा नया पोर्टल बनाया गया है। उसमें भी आवेदन की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। आवेदन प्राप्त होने पर स्कॉलरशिप स्वीकृत करके और उसका वितरण किया जाएगा। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पंजाब में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत के बाद भगवंत मान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन पहले ही दिन से भगवंत मान एक्शन में नजर आ रहे हैं। वो लगातार तमाम तरह के बड़े फैसले ले रहे हैं। अब ऐसा ही एक फैसला सीएम भगवंत मान ने विधायकों और सांसदों की पेंशन को लेकर लिया है, जिसमें कई बार चुनाव जीतकर आने वाले नेताओं को हर टर्म की पेंशन नहीं दी जाएगी, जिसके बाद लाखों रुपए की पेंशन लेने वाले विधायकों और सांसदों को अब उनके एक ही टर्म की पेंशन दी जाएगी। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। साडे नौजवान मुंडे कुड़ियां डिग्रियां लैके घर वापस मुड़ गए, जो उन्होंने डिग्रियां नूं लैके वो नौकरी मंगण जांदे ने तां लाठी चार्ज हुंदा है, पानी दीयां बाछड़ां पग्गां ढैंदियां ने, चुन्नियां लैंदियां ने, नौकरियां नहीं मिल रही। असीं इस मामले 'च बहुत बड़े बड़े कदम चक रहे हैं, पर जो अज मैं तुहाडे नाल गल करनी है वो एक होर विषय ते है। साडे राजनीतिक लोग जिहड़े MLA वो हत्थ बन के लोगों तो वोटां मंगते हैं कि सेवा का मौका दिओ जी। कई तां राज नहीं सेवा कह के भी जिहड़े ने वोटां मंगते हैं।
ਤੇ हैरानी होगी ਤੁਹਾਨੂੰ कि बहुत सारे MLA ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 3 ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ 4 ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, 5 ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ, 6 ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਆਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਥ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3.5 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4.5 ਲੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5.25 ਲੱਖ ਵੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ MPs ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ MP ਦੀ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ MLA ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ MLA ਭਾਵੇਂ 2 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ, 5 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ, 7 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 1 ਟਰਮ ਦੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਸਿਰਫ 1 ਟਰਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਿੱਤ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਬਚੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ MLA ਨੇ, ਐਕਸ MLA, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 2 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, 5 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, 10 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1 ਟਰਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਭੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਫਤ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। Sri T. Sumiti. Sir, can I? Yes, please. Sir, I'd like to ask the Minister through you, the ischemic heart disease was the leading cause of years of life lost due to premature mortality in Tamil Nadu in 2016. Were any steps taken by the union government to mitigate such diseases, sir? Thank you. सर, आदरणीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहूँगी कि लगातार हम स्क्रीनिंग हो या फिर PHC, CHC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे उसका टेस्टिंग हो, मदर के ANC चेकअप को भी मैंडेटरी किया है। लगभग 4 ANC तो हमने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना से भी की जा चुकी है, जिसमें कि इस तरीके के हार्ट डिसीज को पहले ही डिटेक्ट किया जाए, जिसमें हमारे प्राइवेट डॉक्टर्स का भी सहभाग होता है। आदरणीय सदस्य को मैं ये कहना चाहूंगी कि NCD क्लिनिक्स भी चलाए जा रहे हैं, जिसके थ्रू वी आर डायग्नोसिंग द पेशेंट एंड ट्रीटिंग देम। Pratap Chand Sarangi. Sir, whether consumption of crushed dust is very much responsible for diseases like silicosis and tuberculosis, whether government has initiated any study in this line, and what are the findings and what steps has been taken to remedy the malady. Sir, what steps have been taken to stop illegal crushers and other illegal operation of industries which are responsible for this? How to maintain the general immunity of common masses, and how to control the air pollution, which is very much responsible for heart diseases, and the today's sound pollution is very much creating very much alarming situation, and what steps has been taken by the government to stop all these things. आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि उन्होंने चिंता जताई है कि सिलिकोसिस को लेके क्या हेल्थ डिपार्टमेंट का काम चल रहा है। बिल्कुल, सिलिकोसिस हो या अदर कॉजेस के कारण हार्ट डिसीज हो या ट्यूबरकुलोसिस हो, उसके कारण एक स्क्रीनिंग भी किया जाता है। जो कंपनीज है उसके तहत हमारी हेल्थ टीम स्क्रीनिंग भी करती है, और ट्यूबरकुलोसिस के लिए सेपरेट नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम भी किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो कदम उठाया है वो बहुत सराहनीय है। उस तरीके से ये स्क्रीनिंग आगे भी बढ़ा है, और इसके तहत हम स्केल अप रैपिड मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस फॉर टीबी डायग्नोसिस एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए काम कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइज स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज क्लोजर टू द कम्युनिटी की भी सुविधा दी गई है, और ड्रग्स और उसके लिए गांव-गांव तक हमारी आशा बहनें ये सेवाएं भी प्रदान कर रही है। जगदम्बा पाल जी। अध्यक्ष जी, मैं बहुत आभारी हूं, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पे हमें अनुमति दी है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि WHO की जो
रिपोर्ट है 2021 की टीबी के संबंध में। इसी तरह से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक सर्वे किया है कि जो आर्सेनिक वाटर है कंटेमिनेटेड, जिसके कारण काफ़ी बीमारियां हो रही हैं, किडनी की, लंग्स की, और यहाँ तक कि स्किन कैंसर भी हो रहा है। तो हमारे सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती जो नेपाल की फुटहिल्स हैं, वहाँ के पानी में जो WHO की भी रिपोर्ट्स है और सर्वे के अनुसार, तो जो पूरे देश में भी इस तरह से अगर आर्सेनिक वाटर कंटेमिनेटेड है जिसके कारण बीमारियां बढ़ रही, उसके संबंध में क्या कोई अध्ययन भारत सरकार कराएगी या किया है? अगर किया है तो उस संबंध में फिर क्या उपाय या क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन सरकार तय कर रही है कि इस तरह से लोगों को शुद्ध वाटर मिले, जिससे कि जो जल जनित बीमारियां हैं वो जल जनित बीमारियों को रोका जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रेज किया है। ट्यूबरक्लोसिस और पानी से होने वाले रोग दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं पहले ट्यूबरक्लोसिस के संदर्भ में बता दूं माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में 21 से 25 लाख ट्यूबरक्लोसिस के केस प्रतिवर्ष आते हैं और उसमें से 4 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। और ट्यूबरक्लोसिस का देश में से टीबी से मुक्ति के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी इस कार्यक्रम में कई बार उपस्थित रह चुके हैं और देश में सारे स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक पार्टनरशिप को जोड़ के आज कई लोग ट्यूबरक्लोसिस के डिसीज से ग्रस्त लोगों को गोद ले रहा है, उसको रेगुलर गवर्नमेंट की ओर से मेडिसिन सप्लाई जा रही है और उसको न्यूट्रिएंट फूड भी दिया जाता है, जैसे कि टीबी से नाबूदी, टीबी से देश को मुक्ति मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें मंत्र दिया कि 2025 तक हमें देश में से टीबी मुक्त करना, इस दिशा में मुहिम चल रही है और हम उसमें सक्सेस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है कि पानी की वजह से कई डिसीज फैलते। बात सही है, हर देश के नागरिक को अच्छा पानी मिले, इसलिए हर घर नल की योजना चलाई जा रही है, जैसे उसको नल पे पानी मिले, शुद्ध पानी मिले, और शुद्ध पानी मिलने से भी कई रोग नाबूद हो सकते हैं। बात सही है और इस दिशा में हम गति से काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 323 दिया कुमारी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले तो मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने पिछले 7 वर्षों में देश में आयुर्वेद और योग के महत्व पर विशेष ध्यान दिया और पूरे देश में आयुष का विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि अभी हाल ही में वो मेरे लोकसभा क्षेत्र राजसमंद में एक कार्यक्रम में पधारे थे और उस कार्यक्रम में एक पत्र के माध्यम से मैंने उन्हें आग्रह किया था कि मेरे संसदीय क्षेत्र में आयुष वेलनेस सेंटर्स खुलवाने की बहुत बड़ी डिमांड है और उस पर ध्यान देके वहां पर आयुष वेलनेस सेंटर्स खुलवाए जाएं। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगी कि इस पे अभी तक सरकार के द्वारा क्या कार्रवाई की गई। माननीय अध्यक्ष जी, आज हमारे साथी संसद सभ्य महोदय ने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों की सेहत अच्छी रहे उसके बारे में प्रश्न पूछा है, इसलिए मैं सबसे पहले तो उनको धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जैसे ही 2014 में अपना एज ए प्रधानमंत्री अपना कार्यभार संभाला, तुरंत ही उसने नेशनल आयुष मिशन घोषित किया। उसमें क्या है कि जो राज्य सरकार प्रस्ताव हमको भेजती है, उसके बाद उसका जो स्टेट एनुअल एक्शन प्लान होता है, उस स्टेट एनुअल एक्शन प्लान से हमारी मिनिस्ट्री में प्रपोजल आती है। उसके बाद हम विचारणा करके उसको एग्जामिन करके हम आयुष और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देते हैं। तो मैं जब नाथ द्वारा गया था तो उन लोगों ने गिने चुने ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर डिमांड किया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आगेवानी में हमारी मिनिस्ट्री ने राजस्थान को कुल हम 12,500 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दे रहे, उसमें राजस्थान को 1,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हम दे रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा राजस्थान के लोगों की सेहत के लिए अच्छा रहेगा। उसमें उसके जो राजस्थान डिस्ट्रिक्ट है उसमें हमने नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर आयुष मंत्रालय द्वारा राजस्थान जिले में कुल 26 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार राजस्थान जिले में 14 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रगतिशील श्रेणी के
तरह कार्यात्मक है। अजय निषाद जी। महोदय, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मतदान 100% हो, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। अभी हमारे देश में मतदाता पहचान पत्र को आधार से लिंक करने की बात चल रही है। अगर ऐसा होता है तो कम से कम फर्जी मतदान की समस्या से निजात मिलेगा। महोदय, ऐसा देखा गया है कि बड़ी तादाद में लोग अपनी आजीविका, रोजगार और रोजी रोटी के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र से काफी दूर दूसरे प्रदेश में रहते हैं और चुनाव के समय निर्वाचन क्षेत्र में नहीं जा पाते हैं और मतदान से वंचित हो जाते हैं, जिसका असर प्रतिशत पर पड़ता है। मेरा प्रश्न माननीय मंत्री जी से है, क्या जिस प्रकार वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना लाई गई है, क्या उसी प्रकार वन नेशन वन वोटर आई कार्ड का योजना लाने का सरकार विचार कर रही है क्या? सर, जो हमारे सदस्य ने पूछा है ये बहुत ही गंभीर मामला भी है और ये सरकार का विचार में भी है कि इस पे कुछ कदम उठाया जाए और हमने प्रक्रिया भी शुरू किया है और मेरे लेवल में भी इलेक्शन कमीशन से भी इसके बारे में काफी जिक्र किए हैं कि पूरे देश में फर्जी वोटिंग को रोकने के लिए और एक मात्र इलेक्टोरल रोल हो जिसको सारा स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉलो करे, इसका भी हमारा विचार है। तो इसके लिए क्योंकि हम चाहते कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग करें लेकिन फर्जी वोटिंग से रुके, इसलिए जो पिछले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हम लाए थे उसमें हमने एक इलेक्टोरल रोल को आधार के साथ लिंक करने का प्रावधान भी उसमें रखा है। अभी वो कंपलसरी नहीं है, वॉलंटरी है, लेकिन इससे जो डबल नाम होते हैं, फर्जी वोटिंग होते हैं, जो बोगस वोटिंग होते हैं, उसमें भी रुकने का बड़ा इसमें कामयाब होने का संभावनाएं है। और भी आगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए जो भी जरूरत कदम है हम उठाएंगे और हमारे सरकार के सोच में है कि वन नेशन वन वोटर लिस्ट हो, ये हमारा सोच है और साथ साथ में एक क्लीन इलेक्टोरल वोटिंग सिस्टम हो, ये भी हमारा सोच है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सुप्रीम कोर्ट का पीएम केयर फंड पर सुनवाई से इनकार, याचिकाकर्ता को दिल्ली हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। मनीष सिसोदिया ने अमित शाह पर कसा तंज, बोले सीसीटीवी गलियों में होते हैं, आसमान में नहीं। हिमाचल सरकार ने मेडिकल डिवाइसेस पार्क के लिए नॉलेज पार्टनर के रूप में NIPER के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टी बशीर का केरल में निधन, 79 वर्ष की उम्र मिली अंतिम सांस। बिहार दिवस समारोह में शामिल हुए 100 से अधिक स्कूली बच्चे बीमार, PMCH में कराया गया भर्ती। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग के बीच मुलाकात, लद्दाख गतिरोध और यूक्रेन संकट को लेकर चर्चा। बंगाल हिंसा को लेकर राज्यसभा में फुट कर रोने लगी भाजपा सांसद, कार्यवाही स्थगित। योगी के शपथ ग्रहण से पहले लखनऊ में एनकाउंटर, पुलिस ने 1 लाख का इनामी बदमाश किया ढेर। रामचरण और जूनियर NTR की फिल्म को दर्शकों ने बताया मास्टरपीस, SS राजामौली ने भी लूटी वाहवाही। ICC महिला वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपने आखिरी लीग मैच में बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम